In this class, as I told you, we are going to discuss chemical shift. So, see, as I told you, chemical shift is a very, very important one point with the exam point of view, but not directly. Then how indirectly? That I'll explain you. See, whenever you are here with the chemical shift, at that time, how can you use this chemical shift parameter, or how can you explain this chemical shift parameter? That I'm going to explain you. But see, to explain this chemical shift, or to explain this chemical shift value, you must have to know first thing first, which is related the uh, with the your spectra about NMR, and that tells you information of NMR spectroscopy. What do I mean by standard of NMR spectroscopy? Standard of NMR spectroscopy मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो कुछ भी NMR स्पेक्ट्रा होता है, अब NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए हमें अब जो कुछ भी हमारे पास में ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होते हैं, तो ये जो कुछ भी केमिकल शिफ्ट प्रोसेस या फिर केमिकल शिफ्ट होती है, तो इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं, और उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होती है. ओके, सो टू एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट पैरामीटर, व्हाट इज मीन बाय केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट अगर से आप लोगों का थ्योरी पेपर होता है, तो आप लोगों को वहां पर सिंपली वो लोग पूछते ही है कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल शिफ्ट, व्हाट इज मीन बाय chemical shift, then you should be able to answerable, or you should be able to define them. What is that? A chemical shift can be defined as difference in parts per million. parts per million आप लोगों को याद आ रहा होगा. क्या याद आ रहा होगा? हमारा प्रैक्टिकल हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें हमने किस यूनिट का यूज किया था? ppm. What is mean by ppm? Parts per million. So same as that of here also, we are using chemical shift, and which can be used to define the difference between your resonance frequency. देखिए, इससे पहले जो भी पार्ट मैंने पढ़ाया था, अब सारा का सारा पार्ट में अप्लाई करना शुरू कर दी. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी of the observed proton and the tetramethylsilane, that is nothing but the standard which is used for NMR spectroscopy. What is that standard? They may ask you this question for your MCQ. Which standard is used in H1 NMR spectroscopy? What will be your answer? टेट्रामिथाइलसिलेन, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है TMS. क्या होता है उसका शॉर्ट फॉर्म? कैपिटल T, कैपिटल M, कैपिटल S. एंड व्हाट इज दैट? TMS. फिर आप मुझे पूछ सकते हो, मैम डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रामिथाइलसिलेन? सो उसका आंसर है यस, absolutely. I know what is the structure of tetramethylsilane. Wait, I'm showing, or I'm drawing that structure right in front of you. And what is that? CCC. टेट्रा बोले तो 4, मिथाइल बोले तो कौन? आप या मैं, दोनों भी नहीं. मिथाइल ग्रुप्स. And so whatever your TMS, that is nothing but tetramethylsilane. That is nothing but the silane. Silane is what? झोपा, सगळे झोपा. क्या होगा? टेट्रामिथाइलसिलेन. हाँ, चलो ये क्वेश्चन आप, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड. अगं स्टँडर्ड ग, पण सेंटर ऍटम कार्बन नाही ना. झोपू नका ग. हाँ स्ट्रक्चर का. सॉरी सॉरी मैम.
It's okay. Chalo, it's a standard, as everybody knows very well. So this is nothing but the structure of, काय झालं slide ला. So this is nothing but the standard which is used for the determination of your chemical shift value for any compound, और जो कुछ भी पिक्स आते हैं हमारे किसी भी अननोन सैंपल के, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू यूज करते हैं. फिर आप लोग पूछोगे मुझे, मैम व्हाट इज मीन बाय दिस डिफरेंस इन पार्ट. बताती हूँ, हाँ, एक्सप्लेन करती हूँ, रुको, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. थोड़ा सा मुझे स्क्रीन क्लीन करने दो, ऐसे गंदे से स्क्रीन में मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आता. सो टू एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट मतलब मैंने केमिकल शिफ्ट इज डिनोटेड बाय द नोटेशन डेल्टा. इट इज डिनोटेड बाय द नोटेशन कौन, डेल्टा. It is denoted by the notation delta, and also we can use this chemical shift value nothing but the by using the टो scale. By using कोणती scale, टो scale. याला काय म्हणायचं, टो. Ah, so you may ask me, ma'am, what is mean by this टो scale and what is mean by this your TMS? What is mean is this delta scale? See, where you are using TMS as your standard, as TMS as a standard, and where you have simply, if you have here as a TMS standard, then यहाँ से आप लोग 0 1 2 ऐसे करते करते 10 तक यहाँ पर आते हो. एंड इस स्केल को हम, जो 0 से राइट हैंड साइड को स्केल में 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10 ऐसे स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा. बट इसके कम एग्जैक्टली अपोजिट, जैसे हम यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को, सॉरी, लेफ्ट हैंड कॉर्नर को 0 1 2 3 so on up to 10, and this scale is known as tau scale. This scale is known as tau scale, but generally we are using delta, that is chemical shift in delta scale. Chemical shift we are measuring, it is in it is in delta value. Okay, so ये अब ये जो कुछ भी डेल्टा वैल्यूज होते हैं, डेल्टा वैल्यूज कैन बी इन द रेंज ऑफ 0 to 10. ऑल्सो इन द टो स्केल, जो कुछ भी स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड क्या होगा, TMS ही होगा बच्चों. बट यहाँ पर ये जो कुछ भी TMS स्टैंडर्ड होता है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप 10 पर आपका TMS एज अ स्टैंडर्ड होगा. आप लोगों को में भी थोड़ा हॉच पॉच हो गया या यहाँ पे, मैं व्हाइट बोर्ड लेके बाद में बताऊंगी, बट आप लोगों को ये केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन समझ में आई क्या, वो बोलो. बहुत सिंपल है. अगर से वो पूछते हैं आपको केमिकल शिफ्ट, तो डिफरेंस बिटवीन टेट्रामिथाइलसिलेन, दैट इज स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द NMR स्पेक्ट्रा, and your resonating frequency, and what resonating frequency of the observed proton, मतलब जो न्यूक्लियाई दिया है उसको रेजोनेट होने के लिए जितनी भी मतलब वैल्यू आती है, या फिर जो भी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा. एंड व्हाट इज दैट, केमिकल शिफ्ट. देन आफ्टर कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं NMR में, TMS, उसका लॉन्ग फॉर्म टेट्रामिथाइलसिलेन. एक सेंटर में सिलिकॉन और बाजू में 4 लाइन मतलब CH3. I think everyone is pretty clear with the definition and the representation of chemical shift. Now just give me permission to explain you the chemical shift value, how to calculate the chemical shift value, or how can we use this chemical shift. If I give you simply frequency of signal and frequency of the reference, then how can you calculate the delta value, that is chemical shift value. So to calculate this delta value, we can use the formula, that is chemical shift is equals to simply
chemical shift is equal to delta, and that is equals to frequency of that given signal minus frequency of the reference upon spectrometer की frequency into 10 to the power 6 plus 6। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी, अच्छे से सुनो सब लोग, ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि आपका ये जो कुछ भी वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की, वो ppm में क्यों आती है। क्योंकि बोलती हूँ आपको, क्योंकि ये जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल होती है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, इज मेजर्ड इन simply is measured in hertz, and frequency of reference is also measured in hertz। and when you have the spectrometer frequency मतलब कि किस किस स्टैंडर्ड का, सॉरी, किस फ्रीक्वेंसी का आपने सोर्स यूज किया है, वो अब हमें अगर से देखना है तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी मतलब कौन से रिजोल्यूशन का आपने एनएमआर यूज किया है, उसको हम रखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल 60 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर होता है, 100 का होता है, 90 का होता है, तो वहां पर आप वो रखोगे। वो मतलब वो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, जो भी रेडिएशन रेडियो एक्टिव, सॉरी यार, रेडियो वेव्स आप यूज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी या फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल होती है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, और इसी फॉर्मूले को हम और भी एक अच्छे से वे में समझा सकते हैं। आपके सैंपल की कितनी फ्रीक्वेंसी है माइनस आपके रेफरेंस की कितनी फ्रीक्वेंसी दी है, उसको डिवाइड करो आप आपके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। किससे डिवाइड करो बेटा जी? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। आप अब मुझे पूछोगे, मैम व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, व्हाई आर यू यूजिंग अनदर term? No, I'm not using any another term. I told you already what is mean by this operating frequency. This operating frequency is in the terms of megacycles। megacycles मतलब एम हर्ट्ज, मिली एम हर्ट्ज मतलब क्या? मेगा हर्ट्ज। मतलब कैसे? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपके जो कुछ भी आप क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी वाला इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, 60 हर्ट्ज वाला, 100 हर्ट्ज वाला, या फिर कितने हर्ट्ज वाला। तो अब आप कितने भी हर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, और उसके बाद में बात आती है कि आपके ये जो कुछ भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी, वो आपको सैंपल की फ्रीक्वेंसी देते हैं, रेफरेंस की भी फ्रीक्वेंसी आपको देते हैं, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कितनी है वो बोलते हैं। अब उस इसमें अब यहाँ पर अगर से ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर से वो लोग देते हैं, तो आप लोग कर पाओगे? केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकाल पाओगे? यस और नो? अगर से सारे वैल्यूज दिए वाले हैं आपको तो बोलो मुझे। मैं क्या करती हूँ, आज आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे प्रॉब्लम्स भी सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लो, नहीं आता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो और एक चीज मुझे जो एक्सप्लेन करनी है ना, तो वो चीज बोलती हूँ आप लोगों को। क्या है वो चीज, या फिर क्या है वो बात? देखिए, ये जो कुछ भी आपकी डेल्टा वैल्यू है, मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा जो है ना, ये तो ये डेल्टा वैल्यू आप आपके किसी भी मतलब कंपाउंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो कैलकुलेट करने के लिए आपके जो कुछ भी, आपके जो कुछ भी क्या बोलते हैं हम उसको, रेंजेस होते हैं, आपके केमिकल शिफ्ट रेंजेस, आई मीन टू से द डेल्टा वैल्यूज, एंड वॉट एवर दिस डेल्टा वैल्यूज आर दिया, फॉर दैट डेल्टा वैल्यूज we can use over the ranges। I'm loading the slide, wait till then। Yes, I have it।
So right in front of you, I'm presenting shielding of protons and the de-shielding of protons. What is mean by shielding of protons and what is mean by de-shielding of proton? After the explanation of केमिकल शिफ्ट वैल्यू, देखिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू के ऊपर जो एमसी सॉरी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो उस पर से क्वेश्चंस आपके नेट सेट गेट एग्जाम में भी पूछे वाले हैं, ना कि नेट सेट गेट, टीआईएफआर, बार, any competitive exam which you want to give after your MSc, okay? और also आप जब कभी भी एक आध इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में जाओगे तो वहां पर भी आप लोगों को केमिकल शिफ्ट निकालने आना जरूरी है। ओके, चलो अब बात आती है शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। शील्डेड प्रोटॉन मतलब क्या, डी शील्डेड प्रोटॉन मतलब क्या? जहां पर भी आपके कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर आप लोग मुझे बोलो कि वहां पर जो कुछ भी नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे। आई मीन टू से इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन I would like to use the term, and that term is nothing but high electron density। मतलब कि ऐसे न्यूक्लियस जहां पर की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो आपके न्यूक्लियस को ज्यादा से ज्यादा शील्ड करते हैं। कि कहाँ से और किस से? तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम यूज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अब आपको मेरी बातों का समझ आएगा कि मैम क्यों ये इतनी बार ये मैग्नेट निकाल रहे हैं एंड क्यों ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई निकाल रहे हैं। देखो देखो सब लोग देखो अच्छे से। अब ये मेरा न्यूक्लियाई, सपोज if I have here nuclei, for example CH3, for example CH2CH2, for example CH triple bond CH, when you have these three different nuclei at that time, can you guys please tell me where is the electricity which is high? Electron density which is high is in the term of CH3, then after CH2 and lastly CH। फिर अब आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम फिर अब इस बेसिक टर्म से आप लोग मुझे बोलो CH3 का पिक शील्डेड रीजन में आना चाहिए कि डी शील्डेड रीजन में? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से रुको, थोड़ा हौच-पौच हो गया। और अब देखो ये जो कुछ भी हमारा स्पेक्ट्रा होता है, इस स्पेक्ट्रा में जो कुछ भी हमारे नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स होते हैं, जहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इन हाई अमाउंट एंड वट एवर दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर दिया विच whose इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई अराउंड दैट न्यूक्लियस, around that nuclei, that nuclei can shield, that nuclei can shield more to from the from the external magnetic field। from what? external magnetic field। and ये जो कुछ भी external magnetic field है, इस external magnetic field में आपके ये जो कुछ भी सिग्नल्स होंगे वो कौन सी फील्ड को होंगे? वो कौन सी फील्ड को होंगे? तो वो फील्ड होगी अप फील्ड। क्यों? आप लोग बोलोगे मुझे मैम वाई इट शुड बी और वाई इट इज सो। इट्स आंसर इज क्योंकि ये जो मैं अभी अभी डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रही थी ना कि नॉर्थ एंड ये जो साउथ है, इसमें आपका ये जो रोटेटिंग न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें अगर से ज्यादा शील्डिंग होगी, मतलब कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर से आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो इन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन मतलब उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, मतलब वो खुद की मतलब खुद वाली उनकी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेम में मतलब कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जो कुछ भी वो न्यूक्लियाइज होते हैं, मतलब that might be electron, that might be neutron or that might be nuclei also, तो उसमें
खुद का उनका स्पिनिंग प्रोड्यूस होता है। और जब भी ये प्रोसेस होती है तब क्या होता है कि वो जो कुछ भी प्रोटॉन्स है उन प्रोटॉन्स का क्या होता है कि ये प्रोटॉन्स शील्ड करते हैं, आपके न्यूक्लियाई को शील्ड करते हैं। किससे? इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड करते हैं। मतलब शील्ड मतलब मराठी में ढाल, हिंदी में क्या नहीं है तो आप लोग ढूंढ लो। वो जो शील्ड एंड स्वॉर्ड बोलते हैं, देखो तो दैट शील्ड मतलब वो प्रोटेक्ट करता है किसको? हम जब भी मतलब हम नहीं, क्योंकि हम तलवारबाजी नहीं करते हैं ना, या फिर तलवार लेके मतलब क्या बोलते हैं उसको, आजकल कहीं पर ऐसा नहीं होता है ना कि पहले जमाने में होता था कि लड़ाई वगैरह लेके वो लोग शिल्ड अँड म्हणजे की ढाल आणि तलवार घेऊन जायचे. मग ढाल म्हणजे काय? शिल्ड. शिल्ड म्हणजे काय? प्रोटेक्ट करणं. कळतंय तुम्हाला मी काय सांगतेय? आर यू गाइज गेटिंग मी? व्हाट आई वांट टू टेल यू इज शील्ड मीन्स दे आर मतलब उनकी जो कुछ भी वो जो प्रोटॉन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो मूव होते हैं मतलब स्पिन होते हैं मतलब उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब उनकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अप्लाई करना होगा कि कम कम अप्लाई करना होगा? समझ रहे हो आप सब लोग या नहीं? हो या भाग गए? यस मैम। अरे Yes. यस मैम, नक्की हो? नक्की हो? समझते? तो ये जो कुछ भी न्यूक्लियस होंगे उनमें जो कुछ भी स्पिनिंग होते हुए उनमें जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद में उनमें शील्ड करने की जो कुछ भी कैपेसिटी होती है, वो शील्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। आई मीन टू से अब इनके लिए ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेडियो वेव्स हमें ज्यादा डालने पड़ेंगे इन पर, इनका रेजोनेंस होने के लिए, या फिर कम डालने पड़ेंगे मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड है ये और रेडियो वेव्स ये ज्यादा होने चाहिए या फिर कम होने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की फील्ड अप्लाई करनी होगी। मतलब कि वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? अब वो शील्डेड रीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। और एक बात मैं शायद भूल गई होंगी आप लोगों को बताने की, या फिर छूट गया होगा मेरे माइंड से, कि शील्डेड प्रोटॉन या फिर शील्डेड रीजन इन योर टीएमएस स्केल या फिर इन योर chemical shift scale where delta is given and TMS जब भी स्टैंडर्ड आप यूज करते हो तो यहाँ पर डेल्टा जब आप जीरो की तरफ से यूज करते हो, तो अब ये जो कुछ भी आपकी जीरो की तरफ जो रीजन होता है उस रीजन को हम बोलते हैं एक तो शील्डेड रीजन या फिर अप फील्ड प्रोटॉन्स, या फिर उन प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? अप फील्ड प्रोटॉन्स। एंड अगर से वो डाउन फील्ड की तरफ मूव होते हैं या फिर डी शील्डेड की तरफ मूव होते हैं तो हम उनको बोलते हैं डी शील्डेड या फिर डाउन फील्ड या फिर डाउन फील्ड। अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो मैम ओके ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे तो हमने आपकी बात मान ली कि वो फील्ड को होंगे, अब कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो वो डी शील्डेड की तरफ होता है क्या? मतलब वो कंपलसरी है क्या? या फिर ऐसे कुछ प्रोटॉन्स होते हैं क्या कि वो डी शील्डेड रीजन में ही पीक देते हैं? तो उसका आंसर है यस बेटा, डाउनफील्ड या फिर डी शील्डेड रीजन में जो कुछ भी ये पिक्स होते हैं ना, तो ये जब कभी भी हम देते हैं तो ये जब कभी भी हमें ऑब्जर्व होगा तो वो वहां पर एक तो एक तो इस पैटर्न पे या फिर डाउन डी शील्डेड मतलब क्या, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे और उस पर से वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल ओ एच, फॉर एग्जाम्पल सीएल HCl बोलो, फॉर एग्जाम्पल HBr बोलो। तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स को जो भी प्रोटॉन्स कनेक्टेड होते हैं वो प्रोटॉन्स की जो कुछ भी पिक होगी वो पिक विल बी एट डाउनफील्ड या फिर
sorry, extremely sorry, it can be appear at de-shielded या फिर in a down-filled region. Are you guys clear? एक छोटी एक मोटा Yes, मोटी ma'am. आप ये समझ में आ गई, मतलब क्या होता है शील्डिंग और डी शील्डिंग। अप फील्ड बोले तो कौन से प्रोटॉन्स शील्डेड, बोलो जल्दी जल्दी। Shielded. Shielded proton. शील्डेड, वेरी गुड। एंड डाउन फील्ड या फिर डी शील्डेड बोले तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव E-shielded. एटम पे कनेक्टेड जनरली जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन। अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम कैसे बताना है ये सब कुछ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। डोंट यू वरी व्हेन आई एम देयर, राइट? सो वेट टिल आई एम लोडिंग द नेक्स्ट स्लाइड। यस, केमिकल शिफ्ट झालं। तो अब ये जो कुछ भी केमिकल शिफ्ट होती है ना, तो इस केमिकल शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वेदर इट इज इन शील्डेड पैटर्न और डी शील्डेड पैटर्न, टू एक्सप्लेन ऑल these things we must have to know what type of factors are there। और अब मैं आप लोगों को पूछूंगी कि ये जो कुछ भी टीएमएस होता है, इस टीएमएस को हम स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, तो उसकी जो कुछ भी वैल्यू है तो वो कितनी है, 0। अब इसके बाद में बात आती है हमारे मोस्ट डी शील्डेड, सॉरी मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स की। व्हाट इज दैट? कि हमारा जो कुछ भी प्रोटॉन है दैट इज नथिंग बट डैश CH3। मैंने आपको बोला था मोर शील्डेड होगा वो कि लेस शील्डेड होगा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। Shielded. शील्डेड। इतने अच्छे अच्छे स्लाइड लिए हैं मैंने और इतना सब कुछ ट्राई कर रही हूँ बताने का, तो आप सब सारे कंसेप्ट्स अप्लाई करो तो वो शील्डेड। एंड देखिए वो हाउ मच इट इज इन शील्डेड, इट इज एट 0.9। हाउ मच इट इज? 0.9। एंड दिस इज इट। सो आफ्टर दैट ओनली CH2 अगर से है तो वो 1.3 पे आएगा, अगर से उसको दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है तो वो 1.4 में आएगा। बट अब बात आती है कि CH ऐसा CH3 अगर से है तो वो 1.7 के रेंज में आएगा। फिर अगर से वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को मतलब C डबल बॉन्ड को अटैच्ड है तो कौन से रीजन में आएगा, 2.1 में। मतलब कि क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? और तो और जब वो कनेक्टेड होता है CH3 आपकी बेंजीन रिंग को, मतलब टुलीन वाला जो प्रोटॉन होगा, तो वो कौन सी पिक देगा, 2.3। और अगर से वो एसिटिलीन की पीक होगी तो वो 2.4 में। अब आप लोगों ने मुझे एक बात पूछनी चाहिए थी बट आप पूछोगे नहीं और मैं बताए सिवा रहूंगी भी नहीं। और वो बात क्या है पता है? कि आपका ये जो कुछ भी H1NMR स्पेक्ट्रा है इसमें sp3 मतलब कि अल्कीन, मतलब कि वेट टू एक्सप्लेन दिस क्राइटेरिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पिक सबसे डीशिल्डेड रीजन में आनी चाहिए थी, बट दिस इज नॉट द केस। एंड व्हाई दिस इज सो? अगर से इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए तो आप लोगों को MSc सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बट मैं इतना इंतजार आप लोगों को क्यों कराऊं, मैं ही बता देती हूँ। इसका रीजन है कि ये जो प्रोटॉन्स है इन प्रोटॉन्स का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि ऐसे प्रोड्यूस होती है। और आप जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस जो कुछ भी इस जो ये जो कुछ भी आपकी फील्ड है इसको पैरेलल होती है। मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल एक दूसरे के पास में आते हैं। अगर से पोल्स अगर से साथ साथ में मतलब पास पास में आते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो ज्यादा अप्लाई करनी होगी कि कम अप्लाई करनी होगी। मैं बहुत ही कम शब्दों में और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी आप लोगों को इसकी वैल्यू अब समझ में आएगी या नहीं आएगी, आई डोंट नो, बट आप लोगों को समझ में
आएगा पक्का से। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड में जाइए और देखिए और कोशिश करिए कि एक्सप्लेन हो जाए, आपको क्लियर हो जाए ये पॉइंट। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और इस आपके इस इन प्रोटॉन्स की, इसकी मतलब इन प्रोटॉन्स की जो कुछ भी फील्ड होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, सेम एज इन योर बेंजीन एज वेल एज इन योर कौन कौन आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एंड दिस इज व्हाई only because of this thing your acetylenic protons gives you simply it's a range of proton in shielded region which is exactly 2.4। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ अलग दिख रहा है, तो यहाँ से एक खड़ी लाइन है, तो ये सारे वैल्यूज इनके हैं। अगर से आपका प्रोटॉन ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कि डबली बॉन्डेड को कनेक्टेड है आपके प्रोटॉन, तो वो आपको पीक देंगे 4.7 की रेंज में। डबल बॉन्डेड प्रोटॉन की रेंज होती है 5 to 6 की रेंज में, बट यहाँ पर अब उसको कौन से कनेक्टेड है, डोनेटिंग विदड्रॉइंग, उस पर भी आपकी जो शील्डिंग डी-शील्डिंग पैटर्न है वो डिपेंड होता है। शील्डिंग मतलब वो 0 की तरफ जाता है डेल्टा वैल्यू में, फिर अप फील्ड को बोलते हैं हम। एंड डी शील्डिंग मतलब 10 की तरफ मूव होता है वो, या फिर करीब करीब 10 के। अब ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैं ये स्लाइड आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब जब आप ये सारे के सारे वैल्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर आपके ये जो कुछ भी डेल्टा वैल्यूज है, ये डेल्टा वैल्यूज फॉर एग्जांपल कार्बन को अगर कनेक्टेड है, आपका कार्बन अगर कनेक्टेड है ऑक्सीजन को, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 50 to 80 डेल्टा वैल्यू। अब ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज है, ये सारे के सारे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज पीपीएम में है। और एक बात मेरी रह गई जो प्रीवियस स्लाइड में मैं बोलना चाहती थी, बट स्लाइड बदलने की वजह से डेल्टा जो वैल्यू है हमारा सैंपल न्यू ऑफ रेफरेंस, न्यू सैंपल एंड न्यू ऑफ रेफरेंस डिवाइड बाय ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑपरेशनल मैग्नेटिक फील्ड या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम उसको। तो वो मेगा हर्ट्ज में है, मतलब कि ये जो डिफरेंस है ऊपर का वो हर्ट्ज में आता है, बट नीचे जो वैल्यू है आपके ऑपरेटिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो इज इन मेगा हर्ट्ज। अब इस मेगा हर्ट्ज को और हर्ट्ज को हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करने आएगा क्या? नहीं। अगर से ये कन्वर्ट करना है हमें तो क्या करना हो, तो हमें सीधे सीधे एक बात करनी होगी, जिसको कि मैं थोड़ा पेन बड़ा लेके बताती हूँ। डेल्टा वैल्यू ये हर्ट्ज में होती है हमारी सैंपल और हमारे रेफरेंस की वैल्यू, उनका डिफरेंस मुझे बोलना है। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलती हूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 99 रुपीज है, तो आपके पास और मेरे पास दोनों के पास 100 रुपए होने के लिए मुझे आपको कितने रुपीज देने होंगे? 1 रुपया देना होगा। या फिर मेरे पास है 1 रुपया और आपके पास है 1 लाख रुपए, बट मुझे 1 लाख 1 रुपया चाहिए, आप लोगों के पास में आप लोगों को 1 लाख 1 रुपया चाहिए, तो मुझे कितने रुपए देंगे होंगे आपको? सिर्फ 1 रुपया देना होगा। समझ रहे हो आप? 1 लाख रुपए नहीं देने होंगे, राइट? आप लोग समझ रहे हो? आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए हैं, बट आप लोगों के पास कितने चाहिए? 1 लाख 1 रुपया। तो मुझे कितने रुपए देने होंगे आपको? एक रुपया सिर्फ देना होगा। 1 रुपया मतलब इट इज इन हर्ट्ज, मतलब डिफरेंस इज इन हर्ट्ज, मतलब रुपीज, इट इज इन रुपीज। ऐसे ही होता है ना हमारे न्यू रुपी का साइन। तो अभी ये जो रुपीज है मतलब वो डिफरेंस इज इन लैक्स और रुपीज। समझ रहे हो? लैक्स में है क्या डिफरेंस? नहीं, वो डिफरेंस किस में? रुपीज में। वैसे ही वो डिफरेंस जो होता है तो वो डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मेगा हर्ट्ज। किसमें? मेगा साइकिल्स या फिर मेगा हर्ट्ज में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे इस मेगा हर्ट्ज का कन्वर्जन करना होगा तो इंटू 10 to the power
6। अब ये 10⁻⁻6 मुझे साइन निकाल देना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10⁻6 से। और आप लोगों को हमने अच्छे से समझाया था हार्डनेस ऑफ वाटर में 10⁻6 मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? मिलियन। तो ये जो कुछ भी है तो पर एटम या फिर पर अगर से साइकिल हमें निकालना है तो हम कैसे बता सकते हैं? वो पीपीएम में। कैसे बता सकते हैं? पीपीएम। दैट इज वाई ओनली ये जो कुछ भी हमारा डेल्टा वैल्यू है उसको हम बताते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्या? इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ क्या? जो भी आंसर आएगा उसको हम इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि उसका आंसर विल बी इन पीपीएम। आप नहीं, मैं नहीं, उसका आंसर क्या होगा? पीपीएम। अब आपको ये बात देखनी बहुत जरूरी है, बट वहां पर देखना होगा कि आप कौन सी यूनिट्स ले रहे हो। अब ये हो गया सब कुछ आपके फ्रीक्वेंसी के बारे में वगैरह। अब बात रहती है सिर्फ और सिर्फ आपके किसकी? फैक्टर्स अफेक्टिंग और जो भी टाइप्स ऑफ स्प्लिटिंग है उनकी। तो ये पार्ट मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। कब पढ़ाऊंगी? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।